while welcoming my brother Raheshwar Rao, Assistant Solicitor General of India, and I would like to specially thank Mr. Ravindra Vishwanath Garu, Ramarao Garu, taking all the pains, Anton Reddy Garu, Krishna Rao Garu, all our brother members, on behalf of Legal Cell, Srinivas Garu also. Lastly, I would like to, it's my pleasure to invite today's chief guest, respected Sri Amitabh Prata Garu, to address. Honorable Chief Guest, I just wanted to introduce the guests who are present here. Not only the advocates, no, our party has directed us to invite all the advocates from all the bars of Hyderabad. But apart from Hyderabad, from districts also advocates have come when they heard that you are coming. And not only that, sir, few the intellectuals and few doctors and one or two chartered accountant also come. When they came, sir, you are coming. And they said they wanted to come and hear. We could not say no, and they are all there to hear you, sir. Please welcome. नमस्कार अंडी बागुनारा भारत माता की respected president of today's event Shri Narasimha Reddy Garu, namaskar to you, my dearest friend and the president of BJP Telangana Dr. K. Lakshman Garu, Shri Ramachandra Rao Garu, Shri Ravindra Vishwanath Ji, the convener of Legal Cell, Shri IVR Krishna Rao Garu, the former Chief Secretary of Andhra Pradesh State, Shri Premendra Reddy Ji, my friend and the General Secretary of the party here, Bhujanga Rao Ji, Surya Karan Reddy Ji, Vishnu Vardhan Reddy Ji, G. Rama Rao Ji, my dear friends, ladies, gentlemen, media. I have come prepared today with number of papers. साधारणतः मुझे किसी भी भाषण के लिए इतने कागज की आवश्यकता पड़ती नहीं है क्योंकि रोज डिबेट करते हैं। आज बहुत सारा कागज लेके आने का कारण है ये CAA के विषय को बहुत अच्छे से समझाना है, इसलिए सारे एविडेंसेस के साथ with all the documents that would be required in the speech to prove my point, because you are lawyers, I have to present my case in front of you. So I have come well equipped with every kind of evidence. My lords, I have the evidence in front of you. दुख का विषय तो यह है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो वाकई इंटेलेक्चुअल हैं और वो सब समझते हैं। इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन्होंने पढ़ा भी है और अब तक ये समझ गए कि जो मोदी जी ने कहा था, जो हर बार अमित शाह जी कहते हैं कि ये जो CAA का कानून है ये किसी का अधिकार छीनने वाला कानून नहीं है, ये अधिकार देने वाला कानून है। It is not a law which would in fact take away rights of anyone. It is a law which gives right to the ones who are underprivileged and deprived. So you all understand that because you are educated, you are intellectuals in real sense. But उनका क्या करें? जो कहते हैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल है, मगर अभी तक वो 3 पन्नों के CAA के बिल को और लॉ को, नोटिफिकेशन को पढ़ा भी नहीं, या यूं कहे कि पढ़ने के बाद भी नासमझ बने हुए। जो सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, मगर जो जग के सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे आप कैसे करें? ये हैदराबाद बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये भाग्यनगर ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहां से CAA के विषय में मुझे बोलना चाहिए। आप लोग तो इंटेलिजेंट है, आप लोगों को तो बोल ही रहा हूं, मगर ये जो कैमरे लगे हैं, इन कैमरे के माध्यम से हैदराबाद में 2 लोगों को समझाना बहुत आवश्यक है। नहीं, 2 ही है। एक है इंस्टिगेटर इन चीफ, वो साधारण आदमी नहीं, वो इंस्टिगेटर इन चीफ है, वो नियो जिन्ना है, वो जिन्ना चला गया मगर ये अभी है, ये नियो जिन्ना है, वो राजाकार पार्टी के चीफ है, उनको समझाना बहुत आवश्यक है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, उनके एक साथी ने, उनके राइट हैंड ने कहा कि 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, क्या ये इंस्टिगेटर इन चीफ 15 सेकंड के लिए भी उन्होंने कोई पश्चाताप किया है क्या? कहीं जाके उन्होंने पश्चाताप करते हुए आपने देखा क्या ऐसा?
15 सेकंड के लिए पश्चाताप नहीं किया। उनका भाई पहले कह रहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखो क्या करते हैं, और अब उनका दूसरा भाई कह रहा है 15 करोड़ क्या करेगा 100 करोड़ का। मगर 15 सेकंड के लिए भी इस इंस्टिगेटर इन चीफ नियो जिन्ना ने पश्चाताप नहीं किया है, क्योंकि आग लगाना इनका फितरत है। ये ऐसा नहीं है, आपको क्या लगता है ये बैरिस्टर है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बैरिस्टर है। ये बैरिस्टर साहब समझ, आप लोग सब बैठे हैं लॉयर्स, वो बैरिस्टर है, वो समझ नहीं पा रहे सीए क्या है, वो समझ नहीं पा रहे कि एंटी मुस्लिम नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कुछ भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे क्या? ये सब समझ रहे हैं मगर समझा उल्टा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आग लगे, वो चाहते हैं कि देश टूटे, देश बटे और इनकी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। He just wants to prove his political point. He wants to score political brownie points. He has no concern for India. He wants India to burn. And that is the reason as to why, to teach Mr. Owaisi what the truth is, I am here in Hyderabad. दूसरा कारण भी मैं बताता हूं, हैदराबाद में बहुत महत्व है। लोगों ने मुझे कहा, अभी मैं एयरपोर्ट में आया तो लोगों ने मुझे कहा, मैं तो मास्क पहना था तो लोगों ने मुझे पहचाना नहीं, मगर मेरे बगल वाले सीट में एक आदमी बात कर रहा था, आप लोग बताइएगा ये सच है कि झूठ है। लोगों ने कहा ये जो टीआरएस सरकार है ये बाहर से तो टीआरएस है, आत्मा ओवैसी है, ऐसा है क्या? शरीर टीआरएस है, आत्मा ओवैसी, ऐसा मैंने सुना, पता नहीं ये सच है कि झूठ। सच है क्या? सच है। तो इसलिए यहां आके समझाना। और मैंने ये भी सुना है, रामचंद्र गारू बैठे हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, कि वो कैबिनेट में उन्होंने कुछ पारित किया है एंटी सीएए रेजोल्यूशन लाने के लिए, और शायद सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में वो सीएए के विरोध में कुछ रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। इसलिए चूंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम यहां आए हैं उनको कागज दिखा के समझाएं। वो कागज दिखाना नहीं चाहते, मगर हम कागज दिखा के डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सीएए क्या है आज हम उनको समझाएंगे। बंधुगण, आज एक वीडियो भी आया है, आप सबने न्यूज देखा है, दिल्ली पुलिस के ऊपर किस प्रकार से हमला हो रहा है। कुछ लोग बुर्का पहनकर पत्थर मार रहे हैं, और आपके ओवैसी के वारिस पठान ने कहा था अभी तो शेरनियां निकली हैं, शेर निकलेंगे। तो आज वो वीडियो दिख रहा है, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मगर ये सत्य है। नाउ इट्स टाइम टू कॉल द स्पेड अ स्पेड। ये प्रोटेस्टर्स नहीं है जो इस प्रकार देश के पुलिस, देश के पैरामिलिट्री फोर्स, देश की आर्मी, देश के सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं, वो प्रोटेस्टर्स नहीं हो सकते हैं। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया। ये भारत के खिलाफ युद्ध है, युद्ध है। जहां आप एक डीसीपी को मरने के लिए सड़क पे छोड़ देते हैं, जहां एक पुलिस वाले को आप जान से मार देते हैं, रतन लाल जी को, जहां एक आईबी के ऑफिसर को घसीट करके 400 बार 400 टाइम्स यू स्टैब हिम एंड यू थ्रो हिज बॉडी इन द ड्रेन, दिस इज नॉट प्रोटेस्ट। प्लीज डोंट गेट इट रॉन्ग, दिस इज नॉट प्रोटेस्ट, दिस इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, ये राष्ट्र सुरक्षा के खिलाफ युद्ध है। ये बात बिल्कुल हम सबको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। अब सीएए पे आते हैं, एक एक करके कागज में दिखाते हैं। व्हाट इज सीएए? क्या है? भारत में सिटीजनशिप कैसे दी जाती है? ये पूरी प्रक्रिया क्या है? बंधुगण, जब भारतवर्ष का विभाजन हुआ 1947, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट्स हुए कि हु शैल बी द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ शुड इंडिया डिबेट एंड डिस्कस अबाउट सिटीजनरी एंड द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिटीजनशिप। सिंस इट वाज अ डायनामिक प्रोसेस देन, उस समय ये डायनामिक प्रोसेस था। भारतवर्ष पार्टीशन हुआ था, विभाजित हुआ था, लोग भारत में आ भी रहे थे और भारत से बाहर जा भी रहे थे। क्योंकि ये डायनामिक प्रोसेस था, इट वाज अ ऑनगोइंग प्रोसेस,
So the Constituent Assembly decided then in 1940s that let's not put a full stop as far as the legalities of citizenship is concerned. हम एक full stop नहीं लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम खुला छोड़ेंगे. And they gave an Article 11 to the Constitution of India. भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक अनुच्छेद 11 दिया हुआ. अनुच्छेद 11 में कहा जाता है कि द पार्लियामेंट हैज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. भारत में सिटीजनशिप कैसे होगा, क्या कानून उसके लिए होगा, यह अधिकार हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के पास है. यह अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने यह अधिकार हिंदुस्तान के सदन को, संसद को दिया. और आप सब ने देखा 2 दिन सघन चिंतन, डिस्कशंस, डिबेट के बाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, सड़क पे नहीं, पार्लियामेंट पे आपके और मेरे प्रतिनिधियों ने इस बिल को पारित किया. CAB बिकेम CAA. तो जो अधिकार पार्लियामेंट के पास था, जो अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पार्लियामेंट को दिया, उसी पार्लियामेंट ने लोकतांत्रिक तरीके से डिबेट करके, डिस्कशन करके कानून बनाती है. और आप कहते हैं हम इस कानून को मानेंगे नहीं. ठीक है, कानून को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाइए. किंतु सोनिया गांधी जी के मित्र, सोनिया गांधी जी के राइट हैंड, उनके NSC के सदस्य, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उनके सदस्य हर्षमंदर कहते हैं नहीं, संसद में नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इक्वालिटी नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट इंसानियत को भी नहीं मानती है, ह्यूमैनिटेरियन रिलेशनशिप को नहीं मानती है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी बेकार है. सड़क पे होगा. हर्षमंदर जी और सोनिया जी, सड़क पे नहीं होगा. हिंदुस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. पार्लियामेंट में ये कानून बना है. आर्टिकल 11 बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया था, उसके अंतर्गत ये देश चलेगा. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट इज दिस प्रेजेंट अमेंडमेंट ऑफ CAA इज ऑल अबाउट? क्या है ये जो प्रेजेंट अमेंडमेंट हुआ, ये क्या है? क्या ये पहला अमेंडमेंट है? क्या ये पहला संशोधन है? देखिए, ये 9वां संशोधन है. दिस इज द 9th अमेंडमेंट. एज फार एज सिटीजनशिप बिल इज कंसर्न, as far as Citizenship Act is concerned, the original act on which citizenship is decided came in 1955, which is called as the Citizenship Act 1955. It is a Citizenship 1955 Act which has been amended 9 times, and this CAA that we are discussing today is the 9th amendment. इससे पहले एक बार भी हंगामा नहीं हुआ, इस बार हंगामा हुआ. आपको समझना पड़ेगा इस बार हंगामा क्यों हुआ, और उत्तर भी उधर से ही आया. कई लोग, ST हसन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, डे बिफोर यस्टरडे डिलीवर्स अ स्पीच अलोंग विद हर्ष मंदर, उन्होंने भी कहा था कि ट्रिपल तलाक हटा दिया, हम चुप रहे. राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया, हम चुप रहे. आर्टिकल 370 हटा दिया, हम चुप रहे. अब हम चुप नहीं रहेंगे. तो ये CAA विषय नहीं, विषय है हम चुप नहीं रहेंगे. हम अपनी सुप्रीमेसी दिखाएंगे, हम राजनीति करेंगे, हम देश को पुनः विभाजन की ओर ले जाएंगे, हम देश को जलाएंगे. इसलिए CAA में ये 9वां अमेंडमेंट था. अब ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये एजेंडा ड्रिवन लड़ाई झगड़ा है. क्या अमेंडमेंट हुआ है? 2 अमेंडमेंट मुख्यतः इसमें हुआ है. क्या है ये 2 अमेंडमेंट और कहां चेंज किया गया, उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड. सिंस यू ऑल आर लॉयर्स, यू ऑल नो, बट स्टिल, ये मैंने आपको कहा कि मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, उनको समझा रहा हूं. कैमरे में देख. यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज अ इलीगल इमिग्रेंट. ये घुसपैठिया कौन है, ये इलीगल इमिग्रेंट कौन है? व्हाट इज द डेफिनेशन? बाय लॉ द डेफिनेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट इज 2-fold. 2 परिभाषा है. द फर्स्ट डेफिनेशन इज वन हु एंटर्स इंडिया विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट. जो बिना सही कागज के भारतवर्ष में घुस आएगा, जिसके पास वैधानिक कागज नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो घुसपैठिया है. दूसरा कौन है? दूसरा वो है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट था, किंतु उसकी वैलिडिटी एक्सपायर कर गई है. मतलब 25 जनवरी तक था, मगर फिर भी वो अभी तक है, तो वो भी घुसपैठिया हो गया. सो 2 रीजंस, 2 डेफिनेशंस. जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और जिसके पास है मगर एक्सपायर कर गया. वो अरुंधति राय, राहुल जी की बहन, आई थी अभी थोड़े दिन पहले,
और आके क्या कहा? आके कहा कि कागज नहीं दिखाना, और कोई अगर एनरोलमेंट के लिए आए घर पे एनपीआर के लिए तो बोलना मेरा नाम कुंफू कुत्ता है, बोलना मेरा नाम रंगा बिड़ला है। रंगा बिड़ला बोला। मैं चैलेंज करता हूं, ये राहुल जी की बहन अरुंधति राय, तीस्ता सीतलवाड़, ये सब जो इनकी बड़ी बहन है, ये राहुल जी की तरह फॉरेन में अधिकांश समय रहते हैं। अधिकांश समय ये अमेरिका, लंदन, यही सब रहते हैं। एक बार जब ये अमेरिका में उतरे अरुंधति राय, वहां जाके उनके इमिग्रेशन ऑफिसर को, जब उनका इमिग्रेशन ऑफिसर पूछा व्हाट इज योर नेम, तो वो बोले आई एम कुंफू कुत्ता। एक बार बोले वहां, फिर बोले मैं कागज नहीं दिखाऊंगी। फिर देखना कैसे क्या करता है वहां इमिग्रेशन ऑफिसर। फिर देखना यहां पर आप कुंफू कुत्ता बताएंगे, रंगा पिटला बताएंगे, और अमेरिका में जाके वो आपको 4 घंटा लाइन में खड़ा करेंगे, यस सर यस सर, वहां जाके खड़े हो जाएंगे कोने में 4 घंटे के लिए। ये सारा कुछ इंडिया में करेंगे, आके रंगा पिटला बनेंगे। एक बार ये सारे लोग जाके अमेरिका और लंदन में रंगा पिटला बन के दिखाए, फिर हम बताते। अब ये हम कागज के बारे में कि इलीगल इमिग्रेंट कौन होता है, वो डेफिनेशन, ये 2 डेफिनेशन। तो हिंदुस्तान की सरकार ने अमेंडमेंट में क्या किया? हिंदुस्तान की सरकार ने इस अमेंडमेंट में जो कि फॉरेनर्स, पहला उन्होंने चेंज किया फॉरेनर्स एक्ट 1946। और जो इमिग्रेंट होते हैं, ये जो घुसपैठिए होते हैं, उनको डील करने के 2 एक्ट, पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946। तो इन 2016 when this bill came for the first time, ये अभी पहले नहीं आया, ये 2016 में पहली बार राज्यसभा लोकसभा दोनों में आया था, ये जॉइंट कमिटी को गया था। उस समय जब बिल आया, उससे पहले भारत की सरकार ने फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 दोनों में अमेंडमेंट किया, और ये 6 धर्म के बारे में, हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, इन सब के बारे में उस समय डाला। किंतु उस समय किसी ने आवाज नहीं किया, क्योंकि उस समय राम मंदिर का जजमेंट नहीं आया था, उस समय ट्रिपल तलाक नहीं हुआ था, उस समय आर्टिकल 370 नहीं हटा था। तो उस समय सब हाँ ठीक है, सब वोटिंग होकर पारित हो गया, उस समय चेंज किया, कोई बुराई नहीं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में बदलाव किया, और उसके माध्यम से ये अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं, जिसमें 2 चीजें कही जाती हैं। एक, कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट का डेफिनेशन बदल जाएगा। किसके लिए बदलेगा? 6 धर्म के लोगों के लिए जो परसिक्यूटेड रिलीजन है 3 देशों में, हमारे देश के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं 3 देश जो इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश इस्लामिक देश हैं। इन तीनों देशों में जो माइनॉरिटी है, जिनके ऊपर प्रताड़ना होती है, वैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये 6 हो गए। ये 6 धर्म के लोग इलीगल माइग्रेंट नहीं कहलाएंगे अगर उनके पास वैधानिक कागज भी नहीं है, तो भी नहीं कहलाएंगे, और उनको हम सिटीजनशिप देंगे। पहला चेंज। दूसरा चेंज उसमें किया गया कि ये 6 धर्म के लोग जब नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले था कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए 11 वर्ष का समय चाहिए था। आप हिंदुस्तान में अगर 11 वर्ष ठहरे हुए हैं, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उस 11 वर्ष को कम करके 5 वर्ष कर दिया। किंतु एक बड़ी बात इस अमेंडमेंट में है, ऐसा नहीं है कि दिस इज एन ओपन कॉल फॉर एवरीवन। 31 दिसंबर 2014 का एक कट ऑफ डेट दिया हुआ है। ऑल दोज पीपल हु केम टू इंडिया, हु बिलोंग टू दीज 6 रिलीजन, because they are a persecuted religion in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, on or before 31st of December 2014 would be granted citizenship of India। केवल उन्हीं लोगों को जो 31 तारीख दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। मुसलमान भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, इतनी जोर से ये ओवैसी चिल्लाते कि मुसलमानों को भी देना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी है। और जब ये सिंगर अदनान सामी को पद्मा अवार्ड मिला, वो भी तो पाकिस्तान से आया था, वो तो मुस्लिम है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब उसको पद्मा अवार्ड का हाय हाय क्यों दे दिया? छाती पीट पीट के रोना। तस्लीमा नसरीन के बारे में आपने बताया, वो भी परसिक्यूटेड थी, मुस्लिम थी, अप्लाई किया, हमारी सरकार ने नागरिकता दी, एक्सटेंशन दिया उनको यहां पर।
उसके बाद भी रोना। उनको सिर्फ एक ही तरह के लोग चाहिए, उनको वही लोग चाहिए जो यहां के मोदी जी को गाली दे, बस तब तो वो ठीक है। अगर मोदी जी के अच्छा बोल दिया, हिंदुस्तान के अच्छा बोल दिया, दे आर नॉट रिक्वायर्ड इवन इफ दे आर मुस्लिम्स फ्रॉम पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो नहीं चाहिए। बंधुगण, ये अमेंडमेंट सरकार ने किया। क्यों किया? इन 6 धर्म के लिए क्यों किया? यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। जब भारत में पार्टीशन हुआ, अखंड भारत जिसकी अभी बात हो रही थी, जब उसके आंचल को फाड़ करके 2 भागों में बांटा गया, उस समय बांग्लादेश नहीं बना था, उस समय ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान और भारत 2 देश बने और धर्म के आधार पर बना। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ अ रिलीजियस बायस, इट वॉज क्रिएटेड ओनली फॉर द मुस्लिम्स, इट वॉज क्रिएटेड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, व्हाइल इंडिया वॉज अ सेक्युलर कंट्री। भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष था, पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना, और चूंकि धर्म के नाम पे बना तो स्वाभाविक रूप से परसिक्यूशन ऑफ अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज बिकेम एन इश्यू। और इसलिए मैं आपको दिखाता हूं नेहरू लियाकत पैक्ट। दिस इज द नेहरू लियाकत पैक्ट। 8th of April 1950 फॉर द फर्स्ट टाइम जो दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप देख सकते हैं नेहरू जी बैठे हुए हैं, और उनके बगल में लियाकत अली जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष थे, दोनों दिल्ली में मिले। पाकिस्तान में नहीं, दिल्ली में मिले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ दिल्ली एग्रीमेंट और द नेहरू लियाकत पैक्ट। 8 अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत पैक्ट साइन हुआ। क्या कहा गया उसमें? आई एम रीडिंग आउट द पैक्ट। The governments of India and Pakistan solemnly agree that each shall ensure to the minorities throughout its territory complete equality of citizenship irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honor, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship subject to the law and morality of the country. बहुत बड़ा है, मैं इतना नहीं पढ़ रहा। I just want that you should hear from these historical documents. आप ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट में से सुने शब्दों को। दोनों देश, पाकिस्तान और भारतवर्ष में ये निर्णय लिया गया कि हम दोनों देश अपने अपने माइनॉरिटीज को, अपने अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे, उनकी रक्षा करेंगे, जानो माल की रक्षा, पूजा करने की रक्षा, आगे बढ़ने की रक्षा, ये रक्षा दोनों देश करेंगे। हुआ क्या? हुआ क्या? हिंदुस्तान में हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ। हिंदुस्तान में हुआ। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 1947 में, तो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज थे, पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनकी संख्या उस समय लगभग 9% थी। आज वो 9% से बढ़ के 17 से 18% है। अच्छी बात है। दिस शोज द डायनामिक सेक्युलर कल्चर ऑफ इंडिया। ये भारतवर्ष के सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता को दिखाता है कि नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत हमने तो अपने अल्पसंख्यकों को, खास करके मुसलमान भाइयों को, क्योंकि मुस्लिम्स को लेकर यहां लड़ाई हो रही है, ओवैसी साहब हो या टीआरएस है, ये मुस्लिम ही कर रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को यहां रक्षा दी गई। और आज इंडोनेशिया के बाद भारतवर्ष पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है जहां सर्वाधिक मुसलमान बंधु रहते हैं। From 9% to a whooping double, that is 18% तक की संख्या बढ़ी। किंतु जैसे अभी बताया जा रहा, वहां पे पाकिस्तान, जब पाकिस्तान अलग हुआ, 23% उनकी माइनॉरिटीज की संख्या थी, 23%। वो घट के आज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की संख्या और खास करके हिंदुओं की संख्या 1.6%, 1.6% मात्र है। But still I don't understand. Are these liberals and seculars blind? वो देख नहीं सकते हैं? Are they blind in their conscience? वो अपने, उनकी आत्मा देख नहीं सकती है सच्चाई? देख सकती है, किंतु समझना नहीं चाहती है, क्योंकि ये तुष्टिकरण की राजनीति, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण बार बार हिंदुस्तान के ऊपर कुठाराघात करना इनका फर्ज है। बंधुगण, मैं एक कागज दिखाऊंगा। केवल नेहरू लियाकत पैक्ट नहीं, अब मैं महात्मा गांधी जी ने 26 सितंबर 1947 को खुले प्रार्थना सभा में क्या कहा था, उनका वो वाक्य पढ़ के सुनाता हूं। महात्मा गांधी कहते हैं, आई कोट, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं, अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते। उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना,
और उनके जीवन को सामान्य बनाना भारत सरकार का पहला कर्तव्य होगा। ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी ने वचन दिया था कि अगर पाकिस्तान में हिंदू और सिखों, केवल हिंदू और सिख उन्होंने कहा था, हमने उसमें और 4 धर्म ऐड किए, अगर हिंदू और सिखों को वहां उत्पीड़न होता है तो वो यहां आए और उनको हम बाहां खोल के उनका स्वागत करेंगे, उनको नागरिकता देंगे, उनकी सारी चिंता हम करेंगे। आप बताइए, ये महात्मा, असली महात्मा गांधी बड़े हैं या ये नकली महात्मा, ये जो नकली गांधी है, ये जो नकली गांधी, आप जानते हैं नकली गांधी कौन है? पता है? ये इतने नकली हैं, ये इतने नकली हैं, इनका कोई गारंटी नहीं। ये चाइनीज गांधी, नहीं मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आप कोई चाइना का माल खरीदता है तो उसका गारंटी नहीं होता, लोगों को लगता है ये कभी भी खराब दूध हो सकता है बल्कि। ठीक उसी प्रकार ये जो गांधी बैठे हुए हैं, जिन्होंने चोरी की है महात्मा गांधी के नाम को और अपना राजनीति कर रहे हैं, आज महात्मा गांधी जी ऊपर उनको तकलीफ हो रही है। उनके नाम को चोरी करके जिन लोगों ने इस प्रकार का दगा दिया है महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी ऊपर से उन्हें कभी माफ नहीं करने वाले हैं। इन नकली गांधियों से सावधान। गांधी जी के और भी कोट्स हैं। गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा था। गांधी जी wrote a letter to Sri Krishna Das on 21st July 1947. वो सब चिट्ठी भी लेके आया हूं। ये चिट्ठी मैं गांधी जी ने क्या लिखा था, I will read out. He wrote in English. I have your letter. Jinnah Sahib has himself said that the non-Muslims will have the same place in Pakistan as the Muslims. But it remains to be seen whether or not such a policy is implemented. The poor Hindus who will migrate owing to oppression will certainly be accommodated in India. But this much is certain that they will have to labor for their bread. वो कहते हैं हम आपको accommodate करेंगे और आपको काम भी करना पड़ेगा अपने पेट की, मतलब सिटीजनशिप देंगे। ये खुद महात्मा गांधी कहते हैं। केवल महात्मा गांधी ही नहीं, मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये राहुल गांधी तो जवाहरलाल नेहरू जी की बात भी नहीं मानते। जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये सब बदल गया कांग्रेस में, जब से सोनिया जी प्रेसिडेंट बनी तब से बदल गया है। उससे पहले थोड़ा समझते थे ये लोग, मगर सोनिया जी जब से आई हैं, कैसे देखिए, मनमोहन जी भी समझते हैं, सोनिया जी नहीं समझती है। क्यों? क्योंकि मनमोहन जी का परिवार वहां यात्रा में, मनमोहन जी की चिट्ठी पढ़ूंगा, मनमोहन जी की परिवार वहां यातना सहा था पाकिस्तान में, वो वहां से यहां आए और यहां प्रधानमंत्री भी बने। किंतु सोनिया जी नहीं समझ सकती थी, क्योंकि इटली में तो नहीं था यातना ना, इटली में नहीं यातना था, उसने वो जानती नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जरा सुनिए। एश्योरेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द पार्लियामेंट ऑन 5th of November 1950। द ऑनरेबल, आई कोट, द ऑनरेबल मेंबर, उससे पहले डिबेट चल रहा था, the honorable member referred to the question of citizenship. There is no doubt, of course, that those displaced persons who have come to settle in India are bound to have citizenship. If the law is inadequate in this respect, the law should be changed. जवाहरलाल नेहरू 1950, मुझे तकलीफ होती है, 1950 में उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो कहा, उसको इतने वर्ष लग गए सत्ताई होने में। वो 2020 में कानून बना, 2019 में कानून बना, इतने वर्ष बीत गए। यही जवाहरलाल नेहरू आर्टिकल 370 के लिए कहते थे, ना ना ना, डोंट वरी, ये घिसते घिसते घिस जाएगा। उनके समय में घिसा नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने घिस दिया। 1950 में जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कानून बदलना चाहिए, इतनी सरकारें आई गई, नहीं बदला, नरेंद्र मोदी जी ने बदल दिया। 1528 से बाबरी मस्जिद का विषय चल रहा था, डिलैपिडेटेड कंट्रोवर्शियल स्ट्रक्चर। राम मंदिर का विषय 1528 से चल रहा था, नरेंद्र मोदी आए, वो सुलझ गया। तो सारी चिंता इन लोगों की ऐसी है कि इतनी बड़ी बड़ी इश्यूज जो कभी सुलझ नहीं सकता था, वो सुलझ कैसे गया, इसलिए ये लड़ाई हो रही है। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। गुलजारीलाल नंदा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नंदा जी क्या कहते हैं, वो तो हमारे पार्टी के नहीं, गुलजारीलाल नंदा हमारे पार्टी के नहीं थे ना, कांग्रेस के थे ना। क्या कहा आई को, सर, ये पार्लियामेंट में कह रहे हैं, सर, दोज माइनॉरिटीज आर देयर कंसर्न, they are their responsibility, they are totally, completely and entirely responsible for them as long as they carry out that responsibility and do their part well,
no question arises here. We need not talk about those people at all. मतलब पाकिस्तान अगर अपनी responsibility निभा रहा है तो ठीक है, हम उन minorities के बारे में बात नहीं करेंगे. But when the security fails in Pakistan, when the minorities in that country for whom we have in the earlier years entered into some arrangement with the country, Nehru Liaquat Pact, suffer, if those arrangements break down and the minorities there are subjected to atrocities and brutal treatment, the brunt of the consequences have to be borne by that country. खुद गुलजारीलाल नंदा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? ये सीपीआईएम वाले सबसे ज्यादा छाती पीट के रो रहे हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम ये. अभी एक डिबेट में किसी ने बिल्कुल सही कहा, कम्युनिस्ट का मतलब इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में, कौम को नष्ट करने वाला कम्युनिस्ट. जो पूरा देश जहां उनका पैर पड़ेगा वो नष्ट कर देंगे. तो कम्युनिस्ट वो जहां रहेंगे वहां अनिष्ट होगा, नष्ट हो जाएगा, ये सब होगा. तो इसलिए wherever there is communism, there is nothing left there. कुछ नहीं बचेगा वहां पे. ये कम्युनिस्ट छाती पीट रहे, मैं कम्युनिस्ट के भी सब लेके आया हूं पार्लियामेंट से. सबसे बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर श्री भूपेश गुप्ता, लेट श्री भूपेश गुप्ता, ये सबसे बड़े लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के. भूपेश गुप्ता का स्पीच है, श्री भूपेश गुप्ता जी का 4 मार्च 1964 इन राज्यसभा. वो स्पीच देते हैं, क्या कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, आप सुनिए. मैं कैमरे में देख के बोलता हूं, वो कम्युनिस्ट लोग सब सुने. श्री भूपेश गुप्ता 4 मार्च 1964 राज्यसभा. We are also committed to the minorities in Pakistan. We have signed the Nehru Liaquat Pact and other agreements. We cannot escape our responsibility in regard to this matter, sir. But we have to face that responsibility within the four corners of a peaceful policy. A policy treat is honorable, a policy that is decent and which answers the needs of human dignity. I think we require there is a very active and effective diplomacy in regard to this matter. It seems, sir, since we signed the Nehru Liaquat Pact, we went into some kind of sleep because it became a little complacent. Perhaps because there was no major riot, but it was a mistake. We should have always taken up the cause of the minorities, sir, especially when the agreement, which has some kind of international force, the Nehru Liaquat Pact, was being violated by Pakistan. It was our duty to have informed the world community about it. मैं बीच में पढ़ रहा हूँ और फिर लास्ट में क्या कहते हैं? After all, those who are crossing into the frontier, that means the minorities from Pakistan, they are not coming with political motives. They are not coming with the aim of supporting this or that party or opposing this party or that party. They are coming here because of certain fears and apprehensions there. They are coming here in quest of life in order to get settlement and rehabilitation. Let us treat them in a spirit of brother and sister taking arms, brothers and sisters. Well, that is how, with a common national and human approach, we can correctly tackle and solve this problem. ये तो कम्युनिस्ट बोल रहे थे, उनको ब्रदर्स एंड सिस्टर के एकदम झप्पी देना है, उनको हक करना है, उनको सिटीजन बनाना है, और हम छाती पीट रहे हैं. अभी सबका पर्दाफाश करते हैं. मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह है, मतलब ये कागज नहीं है मनमोहन सिंह, इसमें उनका भाषण है. डॉक्टर मनमोहन सिंह, राज्यसभा, 18 दिसंबर 2003. उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे. वो क्या थे? वो आसाम के राज्यसभा के सदस्य थे. आसाम के, जहां के लिए अभी सबसे ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं. वो आसाम के राज्यसभा के सदस्य के नाते राज्यसभा में ही इज प्लीडिंग. एंड हु इज सिटिंग ऑन द चेयर? मैडम नजमा हेपतुल्ला. उनको क्या बोल रहे हैं सुनिए. While I am on this subject, मैडम मतलब सोनिया मैडम नहीं. आपको लगता होगा खाली एक ही मैडम है, ऐसा नहीं. वो कभी कभी दूसरों को भी मैडम बोलते हैं. While I am on this subject, madam, I would like to say something about the treatment of refugees. After the partition of our country, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution. And it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal. I sincerely hope that the Honorable Deputy Prime Minister will bear this in mind in charting out the future course of action with regard to Citizenship Act.
ये मनमोहन सिंह जी ने पढ़ा था राज्यसभा में और कहा था जल्दी सिटीजनशिप दे दीजिए, बहुत परेशानी में है ये लोग, मैडम प्लीज कुछ करिए। फिर मैडम क्या बोलती है, देखिए मैडम गुस्से में आती है और बोलती है, मिस्टर आडवाणी, द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान आर आल्सो सफरिंग, दे हैव टू बी टेकन केयर टू। खाली बांग्लादेश के नहीं, पाकिस्तान की भी जो माइनॉरिटीज हैं वो भी बहुत सफर कर रहे हैं। और मनमोहन जी ने ऐसे सीख लिया। फिर आडवाणी जी कहते हैं, मैडम आई फुल्ली एंडोर्स द व्यू, मैं एंडोर्स करता हूं और हम कानून बनाएंगे। उस समय इतना कुछ पढ़ा और आज बोल रहे हैं कि क्या क्यों आया। आई मीन दिस इज क्लासिक केस ऑफ हिपोक्रेसी एंड डबल स्पीड। मतलब हिपोक्रेसी भी आज शर्मा गई। If hypocrisy sees this, hypocrisy will commit suicide, I'm sure. ये मनमोहन सिंह थे। अब हाँ असली चिट्ठी आ गया। ये दिख रहा है आपको कौन? ये प्रकाश करात है, प्रकाश करात, CPIM प्रकाश करात। In 2012, CPIM General Secretary wrote to the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh asking for amendment to Citizenship Act. उन्होंने अमेंडमेंट मांगा था सिटीजनशिप एक्ट में 2012 में और एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को। अब मैं चिट्ठी का पोर्शन पढ़ूंगा। At the time, I quote, at the time of the Parliament discussion on the Citizenship Amendment Act 2003, all political parties from across the spectrum had supported an amendment to protect these citizens who are victims of historical circumstances. Yet, even after so many years, the law considers them illegal migrants. These are cases where they have been treated like criminals. This party Congress means CPIM Congress, demands a suitable amendment in the clause 2, 1B of the said Citizenship Act in relation to the Bangladesh minority community refugee. वही amendment चाहिए जो amendment हम clause 2, 1B में हमने किया है, मोदी जी ने किया है। Exactly the same amendment that they wanted, and they wanted the Bangladeshi minority community to be saved. और आप बोल रहे हैं कि क्यों? I mean, look at this. और देखिए, और भी कागज है। हम कागज दिखा रहे हैं। देखिए, आप कागज दिखाना नहीं चाहते, कम से कम देख तो सकते हैं। दिखाना नहीं चाहते, ठीक है, देखिए। 107th report of Committee on Home Affairs. There was a Committee of Home Affairs. And this is the 107th report of the Committee of Home Affairs. Parliament of India, Rajya Sabha, Department Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, 107th report on Citizenship Amendment Bill 2003, presented to the Rajya Sabha on 12th December 2003, laid on the table of Lok Sabha on 12th December 2003, and composition of the committee, Shri Pranab Mukherjee, Chairman, Rajya Sabha, श्री कपिल सिब्बल, बीजेपी के नहीं, कपिल सिब्बल, श्री हंसराज भारद्वाज, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के, श्री मोतीलाल वोरा, मोतीलाल वोरा जी, सारा पैसा उन्हीं के पास है। श्री मोतीलाल वोरा जी को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक अच्छा नाम दिया है। वो नेशनल हेराल्ड का गेटकीपर, चौकीदार पैसा वाला। सारा नहीं, नेशनल हेराल्ड में सारा पैसा राहुल गांधी ने जो घपला किया है और सोनिया जी ने 5000 करोड़ बेचारे मोतीलाल जी को बाहर बैठाया है चेयरमैन बना के। सारा पैसा उन्हीं के पास है। केस चल रहा है उनके ऊपर। खैर, तो कपिल सिब्बल, हंसराज भारद्वाज, मोतीलाल और अंबिका सोनी, बीपी सिंघल, जनेश्वर मिश्रा, चलिए। तो ये सब मेंबर्स। रिकमेंडेशन क्या होता है, पढ़िए। First recommendation, Indian citizenship should be granted to Bangladeshi and Pakistani minority refugees. National identity card should also be issued to these refugees. Number 1. बांग्लादेशी और पाकिस्तान माइनॉरिटी को आप सिटीजनशिप दीजिए, उनको कार्ड भी दीजिए। Second recommendation, citizenship should be granted only to Bangladeshi minority refugees and not to the refugees belonging to majority community. गलती से भी वहां के majority community के लोगों को आप सिटीजनशिप मत दीजिएगा। Every citizen should be given a national identity card. सबको आइडेंटिटी कार्ड भी देना है। वो NPR आइडेंटिटी कार्ड देना है, उसके लिए उन्होंने NPR शुरू किया। सबसे पहले प्रतिभा पाटिल जी के पास गए NPR के लिए, फिर पी चिदम्बरम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया NPR के लिए कि कागज दिखाना होगा सबको और लाइन में लग के दिखाना होगा। हमारी सरकार ने कहा कुछ कागज नहीं दिखाना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, कोई बायोमेट्रिक नहीं लेना है,
किंतु पी चिदम्बरम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सब टीवी में देखा होगा। उन्होंने करके कहा, जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड इन अ क्यू, यू वांट होल ऑफ इंडिया टू स्टैंड इन अ क्यू, यू नो व्हाट friend, father and philosopher of black money, Mr. P. Chidambaram was saying? P. Chidambaram is a friend, father and philosopher of black money. ये राम जेठमलानी जी ने उनके लिए कहा था। तो पी चिदम्बरम जी ने अपना तरीके से, जो इंग्लिश बोलते हैं वो, तो ऐसे कहा उन्होंने, इट इज पीपल आर नेवर अफ्रेड टू स्टैंड इन क्यू, कम टू माई विलेज, आई विल शो, दे एंजॉय स्टैंडिंग इन क्यू, they enjoy standing in queue, because in our village they stand in queue for puja, they stand in queue for everything, so बहुत खुशी खुशी वो लाइन में खड़े होते हैं। मतलब उनके समय में लाइन में खड़ा होना एंजॉयमेंट, और हमारे समय लाइन में भी नहीं खड़ा होना है, वो डिस्ट्रक्शन। तो दिस इज द 107th रिपोर्ट दैट आई हैव शोन। अब तरुण गोगोई का पर्दाफाश करते हैं। आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, जो अभी बहुत रो रहे थे, तरुण गोगोई जी ने एक चिट्ठी लिखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कब लिखा? अप्रैल 20, 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, तरुण गोगोई जी का चिट्ठी। आई एम रीडिंग आउट द लेटर। वी विल टेक अप द अनरिजॉल्व्ड इश्यू ऑफ सिटीजनशिप फॉर द बंगाली हिंदूज, बुद्धिस्ट्स, Christians and people of other minority communities who came to Assam after being subjected to inhuman torture post the partition of India. These people were citizens of undivided India, and they were forced to flee their own homes for saving their lives after being subjected to atrocities on the grounds of religion. The APCC, that is Assam Pradesh Congress Committee, urges the center to grant citizenship to all such people, taking into consideration historical reality and the humanitarian aspect. Tarun Gogoi ये एक चिट्ठी लिखते हैं, and when we are giving them citizenship, ये रो रहे हैं। बंधुगण, अभी कोई टाइम आप लोग परेशान तो नहीं है? रिपब्लिक में डिबेट है, मैंने उनको कहा यहीं पे कैमरा भेज दीजिए, मधुर जी आप यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर करें, और नॉट के साथ ये भी तो तुम्हें। तो he spoke about Jogendra Nath Mandal. Jogendra Nath Mandal, how many of you know? He informed you. Yes, you all know, you are the informed crowd, but मैं कैमरा में देख के बता रहा हूँ। You all know everything, but instigator in chief, और जिसका शरीर बाहर और अंदर आत्मा ओवैसी का है, उसके लिए बता रहा हूँ। Do they know who this man is? This man is Jogendra Nath Mandal, a Dalit man. And while Dr. B.R. Ambedkar was the first law minister of India, he was the first law minister of Pakistan. He was a Muslim League member. He fought to get parts of Assam to Pakistan, then Pakistan, now Bangladesh. Sylhet, the Sylhet portion of Assam, he fought that is a Muslim dominated area and that should go to Pakistan, and went. So in fact, he is the man who was a Muslim League man. He was a cabinet minister, the first law minister of Pakistan, but you would be astonished, he was treated so shabbily. वो हिंदू होने के कारण उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान में इतना अत्याचार किया गया कि आखिरकार अक्टूबर 1950 नेहरू लियाकत पैक्ट के 4 महीने बाद इनको इस्तीफा देके पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में बंगाल में शरण लेना पड़ा, और बंगाल में ही उनकी मृत्यु हुई। This is just imagine what Pakistan is. जब वो अपने कानून मंत्री को नहीं बख्श सकते हैं because he is a Hindu, वो किसको छोड़ेंगे? Friends, there is a professor called as Barkat Ali of Dhaka University in Bangladesh, and he has in his book said that 30 years from today there would be no Hindu in Bangladesh. 30 years from now there would be no Hindu in Bangladesh. Bandhugan, I am moving towards the close of this speech of mine, but I wish I should inform you about Assam. What is the problem in Assam? Assam was typically, उसमें मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जान के आश्चर्य होगा, when the cabinet mission in 1946 before partition grouped Indian states into category A, B, C, Assam was put into the category C, means Assam should have gone to Pakistan, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको पाकिस्तान भेजना है। ये निर्णय कैबिनेट मिशन ने लिया क्योंकि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा प्रेशर था। We should salute a man called as Gopinath Bordolai of Congress. उस व्यक्ति ने लड़ाई लड़के
अपने जान पे लेके उस व्यक्ति ने आसाम को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया, पाकिस्तान में जाने नहीं दी। इसलिए मैं कैमरा में देख के सोनिया जी से कहता हूं, सोनिया जी आपको शिक्षा लेनी है किसी से तो गोपीनाथ बोरडोलोई से लेकर, प्लीज सोनिया जी पढ़िए गोपीनाथ बोरडोलोई ने क्या किया है आसाम के लिए और आप लोग क्या कर रहे हैं आसाम के लिए। इस गोपीनाथ बोरडोलोई के लिए आसाम बचा। आपको पता होगा लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो गवर्नर थे आसाम के, तो उन्होंने एक रिपोर्ट बना के आसाम का राजीव गांधी जी को दिया था। उसमें उन्होंने कहा था वाइसरॉय बवेल जो थे आसाम में, वाइसरॉय बवेल थे इंडिया में, उन्होंने बवेल ने एक बड़ी बात लिखी थी। बवेल ने लिखा था कि आसाम के पूरे डेमोग्राफी को किस प्रकार से मुस्लिम बाहुल्य कर दिया जाए, इसका षड्यंत्र मुस्लिम लीग पार्टी कर रही है ताकि इसको काटा जा सके हिंदुस्तान से। इसको कोट किया था। जिन्ना ने 1940 में गुवाहाटी में बोला था आसाम इज इन माई पॉकेट्स। आप जानते हैं ये सारी लड़ाई इसलिए आसाम में हो रही है बिकॉज दीज पीपल, दिस सो कॉल्ड जो जिहादिस्ट है पाकिस्तान इत्यादि में, वो चाहते हैं कि जिस प्रकार कश्मीर चल रहा था आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले, जिस प्रकार कश्मीर जल रहा था, आसाम भी उसी प्रकार जले और आसाम को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो। मगर आज मैं धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी ने ये होने नहीं दिया है। बंधुगण, क्योंकि आप लॉयर्स हैं, इन द पासिंग आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ लॉ बिकॉज आप लोग सब लॉयर हैं। आप जानते हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि जहां तक आर्टिकल 14 और इक्वालिटी का विषय है, it does not hamper the article 14 because Indian constitution allows you to have reasonable classification। आप सब जानते हैं reasonable classification के कारण से हम 3 देशों को एक क्लासिफाई कर सकते हैं, 6 धर्मों को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और जहां तक ये जो ममता बनर्जी जी की बात अभी आप कर रहे थे, ममता बनर्जी जी कुछ दिनों पहले आपने वो वीडियो देखा होगा, स्टेज में माइक लेके, ऐसा माइक था, ऐसा माइक लेके काका छीछी देखा था, काका छीछी कर रही थी। ये ममता बनर्जी का आपने वो वीडियो देखा है? जब 2005 में यही ममता बनर्जी इतने सारे पेपर पकड़कर पार्लियामेंट में जोर जोर से चिल्ला के बोल रही थी ये जो इलीगल इमिग्रेंट है इनको बाहर भगाओ, ये सारे लोग सीपीआईएम को वोट कर रहे हैं, इनके बारे में कोई चिंता क्यों नहीं करता है, ये बांग्लादेशियों के बारे में कौन चिंता करेगा, ये ममता बनर्जी बोल रही थी। और जब किसी ने नहीं सुना तो सारा कागज स्पीकर के ऊपर फेंक दिया और अब बोली उस समय काका लाला, अब काका छीछी, क्योंकि वोट बैंक उस समय खुद बोल रहे थे कि ये लोग सीपीआईएम को वोट कर रहे हैं तो इनको भगाओ, अब बोल रही है सारा बांग्लादेशी इंडियन है। आज उन्होंने अपना हरीश साल्वे जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, हरीश साल्वे जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है अगर सबको आने देंगे तो फिर बॉर्डर हटा देते हैं, अगर सबको ही इंडिया में लाके बसाना है तो फिर बॉर्डर क्यों है, there is no need for a border। इसलिए कट ऑफ डेट है और जो लोग परसिक्यूटेड है उनको हम ला रहे हैं, हम नहीं लेके आए, वो भाग के आए हैं, उनके लिए हम कानून लाए हैं ताकि उनको नागरिकता मिले। दिस इज अ ह्यूमन इफेक्ट और यू ऑल शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कैमरे के माध्यम से नासमझों को कुछ समझ मिली हो और नासमझ लोग जो हैं वो प्रायश्चित करेंगे। आई फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट डायस would call for peace everywhere. We all are people who should protest, but democratically protest, not anti-democratically. And दिल्ली में जो हुआ बहुत शर्मनाक है, इस प्रकार की हिंसा कहीं न हो। और सोनिया गांधी जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक जिन लोगों ने ऐसे दंगों को भड़काया है, उन लोगों को देश से क्षमा मांगनी चाहिए, देश के सामने आकर उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू वेरी मच।